ایک بات عرض کرنا چاہوں گا آپ سے کہ قبلہ خمار صاحب میرا خیال ہے اپنے قبیلے کے آخری فرد ہیں، the last of his tribe. یہ دور، یہ رنگ، یہ مزاج، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بعد آخری محافظ ہیں اس انداز بیاں کے، اپنے قبیلے کے آخری فرد رہے قبلہ جون ایلیا، تو انہوں نے کوئی قبیلہ بننے ہی نہیں دیا. کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ پہلے فرد ہیں یا آخری فرد. میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ جون بھائی بیٹھے تو میں جسارت کر لوں کہ جس طور میڈیسن پہ، طب پہ، فزکس پہ، اکنامکس پہ، کیمسٹری پہ بلا بلا ملتے ہیں نوبل پرائز، اگر صبر و تحمل پہ کوئی نوبل پرائز ہوتا تو اس کی پہلی حقدار تھی زاہدہ حنا، اور اس کے بعد بھائی منصور جاوید، یہ خاکسار بھی، شکیل عادل زادہ بھی، ہم سب لوگ بخدا یقین نوبل پرائز کے مستحق ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ یہاں 4 آدمی ضرور موجود ہونے چاہیے، وہ 5واں یہ یعنی مجرو بھائی حضرات، آپ جانتے ہیں کہ یہ شب آج ان کے نام سے معلوم ہے اور آج ان کا جشن ہے. یہ آپ کی سخن فہمی کا امتحان ہے کہ آپ کس قدر ان سے سنتے ہیں. میری خواہش ہے، یہ تو بیٹھے ہی ہے سلیم جعفری، میرا معشوق بھائی، یہاں منصور جاوید بھی کہیں بیٹھا ہوگا، ملک صاحب بھی بیٹھے ہوں گے، میرا رسول بھی ہوگا اور حبیب بھائی بھی ہوں گے. حبیب بھائی، میں نے آپ کے نظریے پر اتنی تنقید کی اس مجبور کے دیباچے میں، یعنی دیوبند اسکول کی میں نے تائید کی ہے اور بریلوں کی مخالفت کی میں نے ذکر کیا. مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس، مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس، وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلی. مجھ میں کب باقی، اچھا بیٹھے ملک بھائی سامنے، مجھ میں کب باقی رہے، مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس، وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلی. کھینچنی تھی اپنی تصویر جنوں، کھینچنی تھی اپنی تصویر جنوں، بیٹھے بیٹھے اس کی زلفیں کھینچ. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کب باقی رہے ڈاکٹر زیدی بیٹھو، جگم کہاں، کب باقی رہے جمال ثانی، مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس، وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلی. کھینچنی تھی اپنی تصویر جنوں، بیٹھے بیٹھے اس کی زلفیں کھینچ. بھائی منصور کہاں ہے؟ منصور جاوید یار، یہ کیا بات، تصویر کا قصہ کچھ؟ اچھا ٹھیک، وہ گھنی وہ ہو گیا. اب ایک اور سناؤں. ساری عقل و ہوش کی آسائشیں، ساری عقل و ہوش کی آسائشیں. ڈاکٹر بیٹھو، میرا رائے بھی تو کرو یار، مجھے نیند نہیں آتی رات بھر 13 برس سے. ساری عقل و ہوش کی آسائشیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دی. ساری عقل و ہوش کی آسائشیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دی. کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، ساری عقل و ہوش کی آسائشیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دی. کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال. کیا کہنے، کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دی. یار غزل آئے، ہاں کچھ 2-3 شعر سناؤں. جب مجھے نیند آیا کرتی تھی، سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں، سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں، نیند آنے لگی ہے فرقت میں. کیا کہنے، سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں. مجرو بھائی،
सरिया फोड़िए नदामत में नींदान शहजाद भाई मुजफ्फर सुन जानी सरिया फोड़िए नदामत में नींद आने लगी है फुरकत में हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर वाह हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर सलीम कौसर हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर सोचता हूँ तेरी हिमायत में क्या कहने हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर सैफ हैं दलीलें वाह बैठिए वो अजरा बैठी है शायदा बैठी यार क्या करें हम हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर सोचता हूँ तेरी हिमायत में चश्मा भी लगा लेना चाहिए हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर सोचता हूँ तेरी हिमायत में इश्क को दरमियान न लाओ कि मैं वाह अजब बेहुदा शेर है इश्क को दरमियान न लाओ कि मैं चीखता हूँ बदन की उसरत में क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इसको सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दरमियान न लाओ कि मैं वाह 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 सागर वाह 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 सब बैठे हैं अपना अगर बैठा क्या है कहने इसको दरमियान न लाओ कि मैं चीखता हूँ बदन की उसरत में इसको सलीम अरे अगर बैठा इसको दरमियान न लाओ कि मैं चीखता हूँ बदन की उसरत में चीखता हूँ बदन की उसरत में अर्ज कर रहा हूँ कि ये कुछ आसान तो नहीं है कि हम वाह जानी जी ये कुछ आसान तो नहीं है कि हम रूठते अब भी हैं मुरव्वत में क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये कुछ सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह कुछ आसान तो नहीं है कि हम क्या कहने जोन भाई कोई जीते अब भी रहिए हैं सुभान अल्लाह मुरव्वत सुभान में। अल्लाह क्या कहेंगे जोन सुभान कुछ अल्लाह आसान तो नहीं है कि हम रूठते अब भी हैं मुरव्वत में वो जो ये कुछ आसान यार मेरी पूरी रूह बैठी है मेरा तहजीब बैठी है मेरा कल्चर बैठा है मैं अमरोहे से आया हूँ इमरुल कैस की सरजमीन में अगर मैं यहाँ से न गया होता तो यहाँ का शेख होता मैं सैयद जो नहीं लिया हूँ जमाने सारे में हो तुम यहाँ के सैयद होते वो जो तामीर होने वाली थी वाह डॉक्टर वो जो तामीर होने वाली थी लग गई आग उस इमारत में क्या कहने वो जो क्या कहने? तामीर होने वाली थी लग गई आग उस इमारत में वो खला है कि सोचता हूँ मैं मलिक साहब वो खला है मलिक साहब हमारे पाकिस्तान है नुमाइंदा है वो खला है कि सोचता हूँ मैं उससे क्या गुफ्तगू हो खिलवत क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान वो अल्लाह खला उससे है क्या गुफ्तगू हो कि हाँ, 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 सोचता हाँ। हूँ मैं उससे क्या उससे गुफ्तगू क्या गुफ्तगू सरफराज अबद सरफराज सागर सुनो यार वो खला है मैं एक बावला आदमी हूँ और परसों में साहिब दीवान हुआ हूँ वो मेरा मजमू जो यहाँ आया है कराची से पाकिस्तान में ये मलिक साहब ने पहुँचाया है वो एक मंसूर जावेद है गुंडा वो एक सलीम जाफरी है वो खला है कि सोचता हूँ मैं उससे क्या गुफ्तगू हो खलवत में यारो शेर सुनो कि जिंदगी किस तरह बसर होगी जिंदगी किस तरह बसर होगी दिल नहीं लग रहा मोहब्बत क्या कहने जिंदगी किस तरह फिर बसर पढ़िए जॉन भाई फिर बताओ जिंदगी किस तरह बसर होगी वाह 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 दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में वाह 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 दिल नहीं जिंदगी किस तरह जिंदगी किस तरह बसर होगी उसके पहलू से लग के चलते हैं हाँ 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 उसके पहलू से यार बैठे जाजी बैठा है अपना कासिम है तशना है अपना जमाल हसन चलिए कौन कौन बैठे उल्टे हमारे
اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں، اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں، ہم کہیں ٹالنے سے ڈلتے ہیں، اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں، ہم کہیں ٹالنے سے ڈلتے ہیں، ہم کہیں ٹالنے سے میں اسی طرح تو بہلتا ہوں یارو، میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح بہلتے ہیں، کیا کہنے میں اسی طرح تو بہلتا ہوں، میں اسی طرح یارو میں اور کیا چاہتا ہوں آپ سے، میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح بہلتے ہیں، یار میرا رسول میں اور کیا چاہتا ہوں، میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح بہلتے ہیں، وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی۔ ظفر جانی سنو، ظفر اقبال اور شاہد بھائی، وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی، ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے ہیں، کیا کہنے وہ ہے جان اب ہر ایک محفل، ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے ہیں، کیا تکلف کریں یہ کہنے، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، کیا تکلف کریں، ڈاکٹر سنو وہ میرا علاج بھی کرو، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، سبحان اللہ کیا کہنے، عاصم فریاد کیا تکلف کریں، عاصم بیٹے کیا کہنے جون بھائی، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، کیا کہنے، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں، کیا کہنے، بالکل جلتے ہیں، واہ واہ واہ، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں، بالکل جلتا ہوں میں تو بالکل جلتا ہوں، ہے اسے جانی جی سنو میری تصویر کے بجائے مجھے دیکھو، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں، مجلو بھائی، خمار بھائی، شہزاد بھائی، ظفر جانی سنو، ہے اس سے دور کا سفر واہ، ہے اسے دور کا سفر درپیش، ہم سنبھالے نہیں سنبھلتے، کیا کہنے، کیا کہنے، ہے اسے ہم سنبھالے دور کا سفر کیا درپیش، کہنے، ہم کیا کہنے، کیا امیجن ہے صاحب، ہے اسے دور کا سفر درپیش، واہ واہ جون بھائی، سنبھالے کیا نہیں، کہنے جون بھائی، واہ واہ واہ، ہے عجب، ہے عجب فیصلے کا صحرا، واہ، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے، کیا کہنے، کیا کہنے، ہے عجب واہ واہ واہ، فیصلے کا صحرا بھی، واہ 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 واہ، ہے عجب، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے، ہے عجب فیصلے کا، عمر بھائی، مجھو بھائی آپ سے سیکھا ہے تو بکواس کر رہے ہیں، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے، ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد، کیا کہنے، ہو رہا ہوں، ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد، دیکھنے والے ہاتھ ملتے، کیا کہنے، ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد، دیکھنے والے ہاتھ ملتے، تم بنو رنگ، تم بنو خوشبو، تم بنو رنگ، تم بنو خوشبو، ہم تو اپنے سخن میں ڈھلتے ہیں، کیا کہنے، جون بھائی نہیں، جون بھائی، جون بھائی، بھائی میری خواہش یہ ہے، میں نے آج طے یہ کیا تھا کہ دبئی میں میرا چونکہ ظہور ثانی ہوا ہے جو سلیم جعفری اور منصور جاوید نے کیا ہے کہ میں نئی غزلیں سناؤں گا، تو ایک بہت ہی بچپن کی غزل لڑکپن کی، یعنی غالباً 1951 کی، 35 سال پڑھنی غزل یا نئی غزل، ظفر جان، ظفر بھائی ہم سب ایک نہیں، کیا ہوگا، ہم آج کل تو یہی ہو رہا ہے،
जफर अब्बार और हाँ हम सब हमूर हैं सुना है जॉन भाई अपने शहजाद भाई। महक उठा है आंगन इस खबर से। हाँ 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 बहुत अजब फजा थी, सब जिंदा थे, बड़ा अच्छा माहौल था, एक खूबसूरत सी फजा, पाकिस्तान हिंदुस्तान एक अजब। और मैं लड़का सा था और इश्क करने की बड़ी ख्वाहिश थी, मैं इजहार मोहब्बत से नफरत थी। महक उठाए आंगन इस खबर से, महक उठाए आंगन इस खबर से वो खुशबू लौट आई है सफर से। हाँ महक उठाए आंगन इस खबर से, वो खुशबू महक उठाए आंगन इस खबर से। आपको मालूम है कि मैं आपके शहर में पहली बार साहिब दीवान हुआ हूँ। परसों दीवान आया मेरा और आप दीवाने हैं कि तीसरे दिन मेरा जो मना रहे हैं। यार कम से कम 10 बरस तो इंतजार करते हैं। ये मजमुआ 29 बरस पहले आना था, लेकिन आया इसकी वजह से मंसूर जावेद की अब इस साल वो मुझे आज मिला है। वो कासिम ने मुझे बताया कि आपका मजमुआ आ गया। कासिम महक उठाए आंगन इस खबर से, वो खुशबू लौट आई है सफर से। तशना जानी जुदाई ने उसे देखा सरे बाम। मेरठ के एक मोहल्ले में जुदाई ने उसे देखा सरे बाम, दरीचे पर शफक के रंग बरसे। जुदाई ने उसे देखा सरे बाम, मंसूर जावेद दरीचे पर शफक के रंग बरसे। मैं इस दीवार पर चढ़ तो गया था। यार अजब शेर है ये, शेर ही अजीब है। मैं इस दीवार पर चढ़ तो गया था, उतारे कौन अब दीवार पर से। मैं इस दीवार पर चढ़ तो गया था, उतारे कौन अब दीवार पर से। हाय हाय उतारे कौन अब दीवार पर। मैं इस दीवार पर यार चढ़ तो गया था। वो बेरी के पेड़ और नीम के पेड़ है ना, पंजाब में होते नीम के पेड़, यहाँ नहीं होते। मैं इस दीवार पर चढ़ तो गया था, उतारे कौन अब दीवार पर से। गिला है एक गली से शहर दिल की। गिला है यार हम चश्मा लगाने का बड़ी बुरी बात है। गिला है एक गली से शहर दिल की, मैं लड़ता फिर रहा हूँ शहर भर से। गिला है एक गली से शहर दिल की। क्या कहने? गिला है एक गली से शहर दिल की, मैं लड़ता फिर रहा हूँ शहर भर से। क्या कहने? हाय 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 उसे देखे जमाने भर का ये चांद। उसे देखे मलिक साहब गौर फरमा रहे, उसे देखे अगर आप ताउन करें तो हमारी मोहब्बतें कामयाब हो जाए। उसे देखे जमाने भर का ये चांद, हमारी चांदनी साए को तरसे। उसे देखे जमाने भर का ये चांद, हमारी चांदनी साए को तरसे। मेरे मानंद लोग पढ़ते हैं मेरी मानंद, ये मुज़क्कर है। मेरे मानंद गुजरा कर मेरी जान, मेरे मानंद गुजरा कर मेरी जान, कभी तू खुद भी अपनी रह गुजर से। क्या कहने? मेरे मानंद गुजरा कर मेरी जान, कभी तू खुद भी अपनी रह। यार मैं थक गया। एक और यार ये कासिम जो है ना, ये बहुत मेरे जंगल का शरीफ तरीन जो आदमी है वो कासिम है, तशना गुंडा है। मगर मैं करूँ क्या यार, ये कासिम क्या चाहता है। अच्छा कासिम मैं वो सुनाऊं, वो सुनाता हूँ मैं। सही है ठीक, अभी सुनाता हूँ भाई। आप हाँ मुझे एक नज़म याद भाई, एक नज़म सामने आ गई। आपने कभी ये महसूस किया कि आशिक भी कभी जुल्म करते हैं माशूकों पर। ये तजर्बा मैं आपको सुना रहा हूँ, इसका उन्वान है सज़ा। अचानक मजरू भाई ने फरमाया था कि तुम ये ज़रूर पढ़ना, हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम। वाह। हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार
तुमसे मिलके बिछड़ता रहा हूँ मैं। क्या कहने जॉन भाई, हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार तुमसे मिलके बिछड़ता रहा हूँ मैं। तुम कौन हो ये खुद भी नहीं जानती हो तुम। वाह, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ ये खुद भी नहीं जानता हूँ मैं। वाह, कौन हो ये खुद भी नहीं जानती हो तुम। मैं कौन हूँ ये खुद भी नहीं जानता हूँ मैं। तुम मुझको जानकर ही पड़ी हो अजाब में, हाँ हाँ हाँ, तुम मुझको जानकर ही पड़ी हो अजाब में, और इस तरह खुद अपनी सजा बन गया हूँ मैं। क्या कहने, तुम मुझको जानकर ही पड़ी हो क्या अजाब बात है, सुभान में, अल्लाह। और इस तरह खुद अपनी सजा बन गया हूँ मैं। तुम जिस जमीन पर हो मैं उसका खुदा नहीं, वाह, तुम जिस जमीन पर हो मैं उसका खुदा नहीं, बस सरबसर अजियत व आजार ही रहो। वाह वाह, तुम जिस जमीन पर हो मैं उसका खुदा नहीं, बस सरबसर अजियत व आजार ही रहो। बेजार हो गई हो बहुत जिंदगी से तुम, वाह, बेजार हो गई हो बहुत, जिंदगी से तुम बेजार हो गई हो तो बेजार ही रहो। क्या कहने, सुभान तुमको अल्लाह। यहाँ के सायों पर्दों से क्या गरज, तुमको यहाँ के सायों पर्दों से क्या गरज। तुम अपने हक में बीच की दीवार ही रहो। क्या कहने, मैं तुम अपने- इब्तिदाई इश्क से बेमेहर ही रहा। ये भी एक टेक्निक है साहब जिंदगी की। मैं इब्तिदाई इश्क से बेमेहर ही रहा, तुम इंतहाई इश्क का मेयार ही रहो। क्या कहने, तुम खून थूकती हो ये सुनकर खुशी हुई, वाह, हाँ हाँ हाँ, तुम तुम खून खून थूकती हो ये सुनकर खुशी हुई। इस रंग इस अदा में भी पुरकार ही रहो। क्या कहने, तुम क्या कहने खून जॉन भाई, थूकती हो क्या कहने जॉन भाई, ये सुनकर खुशी हुई। क्या कहने, इस रंग इस अदा में भी पुरकार ही रहो। मैंने ये कब कहा था मोहब्बत में है नजात, वाह वाह वाह, भाई क्या मैंने ये कब कहा था, कि मोहब्बत में है नजात, मैंने ये कब कहा था वफादारी रहो। वाह वाह वाह, मैंने ये कब कहा था मोहब्बत में है नजात, मैंने ये कब कहा था वफादार ही रहो। अपनी मताए शौक लुटा कर मेरे लिए, वाह, अपनी मताए शौक लुटा कर मेरे लिए बाजार इल्तिफात में नादार ही रहो। वाह, मैंने ये कब कहा था मोहब्बत में नजात, मैंने ये कब कहा था वफादार ही रहो। जब मैं तुम्हें नशाते मोहब्बत न दे सका, वाह, जब मैं तुम्हें नशाते मोहब्बत न दे सका, गम में कभी सुकून रिफाकत न दे सका। जब मैं तुम्हें नशाते मोहब्बत न दे सका, गम में कभी, जब मैं तुम्हें नशाते मोहब्बत न दे सका, जब मैं तुम्हें नशाते मोहब्बत न दे सका, गम में कभी सुकून रिफाकत न दे सका। जब मेरे सब चरागे तमन्ना हवा के हैं, आहा, मजरू भाई, कुमार भाई, जब मेरे सब चरागे तमन्ना हवा के हैं, जब मेरे सारे ख्वाब किसी बेवफा के हैं, आहा, जब मेरे सब चरागे तमन्ना हवा के हैं, जब मेरे सब चरागे तमन्ना हवा के हैं, जब मेरे सारे ख्वाब किसी बेवफा के हैं, फिर मुझको चाहने का तुम्हें कोई हक नहीं, वाह, फिर मुझको चाहने का तुम्हें कोई हक नहीं, तन्हा कराने का तुम्हें कोई हक नहीं। क्या कहने, ख़वातीन हज़रात, मुझे आपके मुताले पे कोई शुबा नहीं। मुझे ये भी इस बात का भी इल्म है कि आपने बेइंतहा शुअरा कराम को भी सुना, उनका कलाम पढ़ा, मगर ये नज़्म जो भी आपने समाअत फरमाई, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि हमने इस नज़्म को सुनने के बाद
दाद क्यों दी, या ये कि इस नज़्म की सुनने के बाद तालियां क्यों बजाई। बहुत कम भाई जॉन पर्सनल होते हैं, मैंने बहुत अरसे से जानता हूँ, आज ये वाकई पर्सनल हो गए। जी 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 आपने बता दिया, बहुत पर्सनल हो गए थे जॉन भाई। अजीबोगरीब नज़्म है ये, और मैं समझता हूँ कि कल कला को जब कोई मौर्रिख अदबी रवैयों की तारीख मुरतब कर रहा होगा तो ये नज़्म उसे बार बार बेतहाशा तंग करेगी। कबल इसके कि मैं सदर महफिल हजरत मजरू सुल्तानपुरी से दरख्वास्त करूँ, मैं उनसे पहले ये दरख्वास्त करूँगा कि इस नज़्म के हवाले से और आज की महफिल के हवाले से वो हमारी हिम्मत अफजाई फरमाएँ और कुछ कलमात खैर इस बदबख्त के बारे में ज़रूर कहें। हज़रत मजरू सुल्तानपुरी साहब। हज़रात, आपने आज जिनकी शाम है यानी जॉन एलिया की, उनके वसीले, उनके ज़रिए, उनकी मौजूदगी से आपने उन्हें जाना पहचाना, उनके शेर सुने, और आपने ये ज़रूर देखा होगा कि ये गुफ्तगू करते हैं शेर में, बज़ाहिर ऊंची उड़ान नहीं लेते, हालांकि होती है। और मेरे नज़दीक ये अपनी तर्ज के वाहिद शायर हैं उर्दू ज़बान में, हिंदुस्तान पाकिस्तान कहीं। वाह वाह। और मेरे बड़ा पसंदीदा, इस कदर मुश्किल तर्ज है इनका कि हर एक का बस का भी नहीं है। गुफ्तगू को शेर बना देना, भाई एक दफ़ा बना दीजिए, 2 दफ़ा बना दीजिए, न कि मुसलसल नहीं बनाते चले जाइए। ये इनका हुनर है। अब इस वक्त रात के 3:45 बजे हैं, और सदर हो के मैं आपको परेशान करूं, मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है, इसलिए 3-4 शेर सुना के इस महफिल को खत्म करें। सरकार 3-4 गज़लें। नहीं, गज़ल कहाँ से? हाँ हाँ। माना शब गम सुबह की महरम तो नहीं है, माना शब गम सुबह की महरम तो नहीं है, सूरज से तेरा रंगे ना